शो था, उसकी पहली फिल्म जो ऑस्कर में गई थी मदर इंडिया। और उसके बाद 2025 में कंटिन्यूसली एवरी ईयर FFI was very active, and last year we had sent homebound. So it's a very systematic, it's a very pure way of organizing the entire route as to how the film normally goes. Very transparent way of sending the film which represents India. मतभेद तो होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बट जूरी जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जूरी होती है। चॉइस किया जाता है, मोस्ट ऑफ द जूरी मेंबर्स आर नेशनल अवार्ड विनर्स, दे आर सीरियस फिल्म मेकर्स, कमर्शियल फिल्म मेकर्स। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है जूरी का वो बहुत ही ऐसे लोगों का बनता है जिन्होंने बेसिकली अचीवर्स in the industry from all over the country. It's not only Hindi cinema, it's not only cinema which is based in Mumbai or Maharashtra, it's also South, Bengal, everywhere. तो जितने भी हमारे जो टॉप क्रिएटिव लोग हैं इंडस्ट्री के, belonging to all crafts, it's not only a director or it's not only a producer. सिनेमाटोग्राफर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, कोरियोग्राफर हो सकता है, आर्ट डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी क्राफ्ट का बंदा जिसने नेशनल अवार्ड जीता है और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो इस जूरी का हिस्सा बनता है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन सच पीपल कम इन द जूरी, थिंग्स आर ऑन अ सीरियस लेवल, इट्स ऑन अ प्रॉपर लेवल, एंड द फिल्म व्हिच गोज इज अ फिल्म व्हिच डिजर्व्स टू गो represent our country, a great country, to the Oscars. The entries of submission of films will be open on 4th of August. प्रेस्टीज आपको दे दी गई, लेकिन तो भी मैं पढ़ता हूँ। The entries for submission of films will be open from 4th of August 2026 till 7th September 2026 at 6 p.m. till 6 p.m. The FFI will nominate a chairman of the jury along with senior qualified people which are sent from the creative field who will be part of the jury. The final entry will be decided as mentioned by Abhay Sinani, the president, by a vote after all the screenings are done and will be announced on 19th of September 2026. So India is marching towards another amazing year in the movies and entertainment space, and we are proud that Indian movies are making a mark at various international platforms, including the prestigious Oscars. The FFI will provide all help to the producers to have a smooth, democratic and transparent nomination process. So, in presence of yours, in presence of the media, we want to communicate to the entire industry all over the country that please send your films with proper paperwork and documentation, and try your luck because you have really worked very hard. You have done brilliant job as far as films are concerned, and think of an opportunity to win this prestigious, portion of the film which you have made with so much of hard work. तो बेसिकली ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा अभय जी ने कहा और धर्म जी ने कहा कि ये अनाउंसमेंट है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ फिल्म फॉर द ऑस्कर्स रिप्रेजेंटिंग आवर ग्रेट कंट्री हैज बिगन फ्रॉम टुडे. So that is what we wanted to share with you, and anything else, I think everything is done. Film submission जो है, film release in theatre, so there are conditions which जो conditions है कुछ उस basis पे ही आप film submit कर सकते हैं. वो पूरे सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको press release issue किया गया है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं. बट बेसिकली मोटे तौर पे यही है कि आपके द्वारा हम अपील कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को all over the country to please send in your films so that it comes into the system, don't delay it, and the films get in front of the jury, and it's everything is technically par excellent. The theatres which we have booked to screen the film, the systematic way which FFI always normally does has been already lined up, and things are all ready to take off. थैंक यू अशोक जी, आपने काफ़ी डिटेल में सब बताया है. नाउ आई थिंक सो विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. प्लीज जस्ट व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन प्लीज टेल योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच प्रेस यू आर. सो नाउ इट्स ओपन. थैंक यू. Hi, so Priya from India. How many jury members will be there, and
मेरी ये समस्या हो रही है. We usually have some about 17 to 19 jury members, and the process is on, and they will be finalized, but we do not give the names of the jury or the chairman. That will be declared in the end. So the process is on, and finalization will happen in few days. And you said 2 entries are there. Which one is this? Which two films got entry? No. Ashok ji was talking about the mother. No, he was talking that the first film which went in 1957. You talking about that film? No, in the beginning of the press conference, it said that we got and 2 movies got Yeah, 2 films already have come in, but we don't give the names out. These are all very, very totally secretive. Dharamji was trying to create the suspense. So we don't give the names out. Everything will be out on the 19th. Once the jury and the chairman, let me one more thing tell you, even we, the committee, the office bearers involved in FFI are not in part of the jury. So it is totally the jury and the chairman who select the film after screening all the films, and they come out and give us a chit and say, this is the film which we have approved. And that film then we declare it to the press and everybody. Last time it happened in Kolkata. This time where it happened? Mumbai. In fact, the committee members are also not allowed to sit in the theatre. They're all supposed to be out and serve lunch and dinner to them. सिराज भाई, तेरे को माइक की क्या जरूरत है यार? जरूरत नहीं है. सही कह रहा है. नहीं चलेगा ना अच्छी को. देता हूँ माइक. अरे नहीं जरूरत है यार सिराज, ये माइक मेरी बोलता है. आपके वाले बोले दिए ना चुप. तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलता हूँ. उर्दू में बोलता. कश्मीरी में बोलूँगा. खानदिश लानदिश. तो ये है कि जब ऑस्कर के लिए फिल्म चुन ली जाती है कि हमारी इंडिया से, हमारे देश से एक फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाएगी, ये तो प्रोसेस आपने बता दिया किस तरह से होगा. लेकिन वो चुने जाने के बाद काफी लंबा प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करने का, ताकि वो ऑस्कर के जो कमेटी है अमेरिका में वो लोग देखें, वो शॉर्ट लिस्ट हो, एक लॉबिंग होती है, और सुना है कि उसमें बहुत खर्चा होता है. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो खर्चा जो है वो क्या प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर या एफएफआई या गवर्नमेंट कौन लोग शेयर करते हैं और किस तरह से? देखिए सिराज भाई, बहुत सिंपल सी बात है. हम फिल्म की पब्लिसिटी या फिल्म की जो मार्केटिंग जो है वो एफएफआई का काम नहीं है. ठीक है, हम लोग का बहुत सीमित रोल है. हमारा रोल है प्रॉपर जूरी, प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना और उस प्रोड्यूसर को या उस पूरी टीम को उस फिल्म को सिलेक्ट करके भेजना. हमारा काम खाली एंट्री तक ही है. बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ फाइनेंशियली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा तो हम कर नहीं सकते. फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद करता है आगे की चीजें जैसे होती हैं, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जहां तक पर्सनल लेवल पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, पेपर वर्क है, उसमें अगर कुछ किया तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं फेडरेशन में वो सजेस्ट कर सकते हैं या वो गाइड कर सकते हैं. बट जो सिस्टम एक बार फिल्म जाने के बाद आवर रोल एंड्स, देन वी कैन नॉट प्रोसीड एनीथिंग मोर देन दैट. हमारा कोई काम ही नहीं उसके बाद. थैंक यू. चाहिए मैं एक चीज ना थोड़ा प्रोसेस को लेकर समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब सिनेमा से जुड़े, ठीक है, मैं कंफर्टेबल, हम सब सिनेमा से जुड़े लोग हैं. कभी ऐसा हुआ है क्या अभी तक के पूरे प्रोसेस में जितने साल से सब चीजें हो रही है, कोई फिल्म रही हो जो शायद आप लोगों को इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगी हो, बट जो उसके मेकर्स रहे वो शायद फाइनेंशियली उतने केपेबल नहीं हो उसको एंट्री में भेजने के लिए, या जिस भी वजह से फिल्म शायद ना आई हो, आप लोगों ने अपनी तरफ से अप्रोच करो कि हमें लगता है आपकी फिल्म बेटर कर सकती है, आपको भेजना चाहिए. अब चूंकि उसमें कमर्शियल एंगल भी रहता है जो करीब 1.5 लाख रुपए की फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है. कोई शायद इसलिए नहीं भेज रहा कि मेरी फिल्म अच्छी है मुझे लगता है, बट मेरे पास वो पैसा नहीं है. इस पूरी प्रोसेस के लिए कभी कुछ ऐसी कोई क्वेरी आई है कि ठीक है आप भेज दो, हम पैसा भी ऑफ कर देंगे कुछ?
आपको एक बार बताता हूँ, जैसे श्वास फिल्म थी मराठी, उस टाइम वो सिलेक्ट हुई थी Okay. और उनके प्रोड्यूसर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उनको लगा भी नहीं कि उनकी फिल्म सिलेक्ट होगी। और फिर उस टाइम इंडस्ट्री ने सबको रिक्वेस्ट किया और सब लोग ने अपने पर्सनल लेवल पे जितना भी पैसा हो सके उनको डोनेट किया। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाद में उन्होंने भी कुछ 1 लाख रुपए उस टाइम दिया। तो ऐसे हुआ है, लेकिन उसमें एफएफआई का कोई रोल नहीं था, लेकिन इन पर्सनल ग्राउंड पर हम लोग सब इंडस्ट्री से जुड़ा गया, एसोसिएशन से, तो पर्सनल लेवल पे हम लोग हेल्प किया था उस टाइम। तो ये इंसिडेंट्स हुआ है। क्या होता है कि जितने भी लोग एसोसिएशन में है, एफएफआई में है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर बॉडीज हैं, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे भी जो है ना, इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रिवन इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ऐसा कम होता है कि अगर सपोज किसी की बहुत अच्छी फिल्म बनी है और उसको कहीं प्रॉब्लम लगती है फाइनेंशियली कि वो 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकता है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज देयर आर मोर देन 100 प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री जो सामने आकर उसको सपोर्ट करके फिल्म भेजेंगे। तो 1.5 लाख रुपए के लिए कोई फिल्म रुकी नहीं आज तक, और रुकेगी भी नहीं। इतना तो वादा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लाखों से बैठे हुए हैं, वो तो हो ही जाता है। आई डोंट थिंक दैट अ प्रोड्यूसर विल एवर not be able to send a film just because he doesn't have the fees coming. Possibly नहीं। अशोक जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब फिल्में जाती हैं ऑस्कर के लिए, एक फिल्म होती है जो आप लोग भेजते हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो प्रोड्यूसर्स खुद भेजते हैं, तो ऑस्कर की तरफ से कोई प्रेफरेंस मिलती है जो फिल्म आप लोग भेजते हैं और या जो फिल्म बाकी लोग भेजते हैं? या गुड क्वेश्चन। व्हेन वी सेंड, जब हम लोग फिल्म को रिकमेंड करते हैं तो दैट इज डेफिनेटली गेट्स अ प्रेफरेंस, क्योंकि तभी फिर वो फाइट होती है सिर्फ 1001 फिल्म्स के बीच में। जब हम भेजते हैं कि इंडिया से हमारी पिक्चर है, लेकिन दैट डजंट स्टॉप डायरेक्टली अ प्रोड्यूसर टू स्टैंड हिज फिल्म, बट देन द कंपटीशन इज बिटवीन अबाउट 10,000 फिल्म्स। So that is the difference. When we recommend, it's a very, but that's the reason. तो इसीलिए इंडिया का ये ऑफिशियल एंट्री होता है थ्रू अस। It's a foreign film, international category अलग है। It's a different category. Any more? Yeah, one more question. So, मुझे ये बताइए, over the years, FFI जिस तरह से फिल्में भेजता है, उसमें ग्रोथ आपको आ रही, मतलब जो लोग आपके पास फिल्में आती है, उसके बात कर रहा हूँ मैं। और कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि आपने ये फिल्म क्यों भेजा, वो फिल्म क्यों भेजा, तो उसको किस तरह से आप टैकल करते हैं? वो तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो लोगों को लगता है कि बेटा पैदा क्यों है, बेटी क्यों नहीं हुई। तो वो तो देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो लोगों की हो गया, तो होना भी चाहिए। इट्स अ वेरी क्रिएटिव डिसीजन व्हिच एनीबडी आई हैव अ थॉट, मेरे साथ ये चलनी चाहिए, वो चलनी चाहिए। So ultimately there are more than 25-30 minds who sit together, use their best mind and best brain and best time and their best creative element into it. और डिसाइड करते हैं तो फिर मैच जो जिसको जितना होता है वो तो जीत ही जाता है। तो उसमें आई थिंक nobody of us, all FFI or the jury members, इसलिए jury members आजकल एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ से होती है, क्योंकि इतनी गालियाँ पड़ती बेचारा कि आपने ये कैसे भेज दिया, वो कैसे भेज दिया। तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू एट ऑल, बिकॉज डिफरेंस ऑफ माइंड और डिफरेंस ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट ऑफ सजेशंस, वो तो एवरीबडी हैज हिज ओन चॉइस, यू नो। बट ये जो डिसीजन होता है फाइनली, इट्स अ डिसीजन टेकन बाय ऑल द जूरी मेंबर्स, एवरीबडी टुगेदर, एंड दे साइन द डॉक्यूमेंट एंड दे अप्रूव द फिल्म। So academy ने एक नया रूल स्टार्ट किया है कि एक से ज़्यादा 2 फिल्में बेस्ट पिक्चर फिल्म के लिए भी जा सकती है। जैसे इंडिया से भी 2 फिल्में जा सकती है, ये नया पहली बार हुआ है। सो क्या आप सिलेक्ट करेंगे 2 फिल्म या 1 फिल्म? नहीं। The point. You want to answer? Okay. Basically, this year onwards, Academy is allowing you to select one more film, but that film selection is not in our hands. The movie selected by Film Federation of India as India's official international feature entry will be only one. But any movie which gets selected as best film in 5 international festivals, whether it's Sundance or there's Berlin or all those 5 festivals which are listed, any movie which gets the best film there can automatically become an entry.
So it's Cannes, Berlin, you understand? Sundance, Cannes, Berlin, Toronto, and Busan. एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगा कि जब आप लोग डिसाइड करते हैं, जूरी जब डिसाइड करती है, ऑस्कर से जो लोग हैं अकेडमी से, वो लोग आपके टच में रहते हैं क्या, या उनका कुछ एक सजेशंस या कि किस तरह की फिल्म में जानी चाहिए? आई थिंक वो एक ज़्यादा ओपन कर देगा हमारे लिए कि हमें कोई अगर अवार्ड मिलता है किसी फिल्म को, तो सजेशंस उनके किस तरह की फिल्म सेलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, it's not that. Initially, we are totally in touch with them. Oscar की कमेटी में every step, because it looks very easy कि हमने आज बोल दिया कि प्लीज पिक्चरें भेजिए, उसके पीछे इतना हार्डवर्क है, इतना मेहनत है, because they are very very strict about everything. So we are in touch regarding the technicalities, but they don't guide us or they don't say anything. It's up to us to select, and not in our hands also. As I clearly told you, it's a jury and the chairman who finalize it. Oscars has nothing to do in. No, I'm talking about jury only. कि jury को एक training session या कुछ किस तरह की? Yes. जो jury हम लोग select करते हैं, नाम होता है. We have to send it to the Oscars. The Oscars do the due diligence of all of them. They do the due diligence over there about every jury member who we have sent, and then they send the approval. And there's a very big, also one point that the jury members directly or indirectly have not to be connected with any films which have come for submission. You know, he cannot be a jury member. So it's like सपोज मैं किसी फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो मैं जूरी में नहीं हो सकता. कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी मेरा रिलेटेड है किसी फिल्म से, तो आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द जूरी. And everything changes. Yeah, of course. And जैसा तुमने पूछा प्रशांत, जो धनंजय ने कहा कि ऑस्कर की जो कमेटी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स में बहुत पहले जाती है. आपको वो फॉलो करना पड़ता है कि थिएटर कौन सा बुक कर, उसके ये थिएटर में फैसिलिटीज हैं क्या, साउंड उतना डिस्ट्रीब्यूशन का है क्या, उसके प्रोजेक्टर ये सेक्शन का है क्या, इतनी सीट्स हैं क्या. सो एवरी टेक्निकल डिटेल्स व्हाइल स्क्रीनिंग द फिल्म टू द जूरी हैज टू बी एज पर द टेक्निकल डिटेल्स गिवन बाय देम. हम किसी भी छोटे थिएटर में फिल्म नहीं दिखा सकते for selection. So everything is decided by them. तो उनका जितना भी जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स को मानकर ही आपको आगे चल के दिखाना पड़ता है. सर धुरंधर फिल्म को एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी एंट्री है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा कि सबसे ज्यादा तेरे को आदित्य धर ने भेजा है कि नेटफ्लिक्स ने भेजा है? नहीं सर, किसी ने नहीं भेजा है. ऑलरेडी सर बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल कर चुकी है फिल्म, इतने सारे लोगों ने देखी है. बहुत सारी फिल्में आया, लेकिन अब उसमें जिसकी जिसकी फिल्में आएगा वो जूरी डिसाइड करेगा ना. एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? जो प्रोड्यूसर चाहेंगे वो सबके पिक्चर का एंट्री आएगा. we on part of Film Federation of India, हमारा जो फर्ज है कि हम बॉम्बे में जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने हम लोग माउथ टू माउथ बोल सकते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसर बॉडीज ऑल्सो, तो हम सबको हमने बता दिया है कि प्लीज भेजिए. उनकी विश है कि वो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं कि नहीं. So today's press conference is basically also to, with your help, also to appeal to all the producers to please submit your films to FFI at the earliest, so that all the paperwork can be done and the things can be planned out. कल को हो सकता है कि इतनी फिल्में आ जाए कि हम जो हमने दिन सेलेक्ट किए हैं उसमें मुझे देख नहीं पाए. सपोज 100 फिल्में आती हैं तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, यू नो. सो नॉर्मली 25 से 50 आ जाती हैं, 30-40 आती हैं फिल्में, but you never know. So it's very important for you, all of you, to